Hello students, welcome back to my next video lecture. In this video lecture, we will discuss filling of atomic orbitals. Okay, how the orbitals of atoms are filled. As we come to know that in quantum mechanics that there are not only shells but shells also containing subshells, and subshells further have orbitals in them. For example, for n equal to 1, only one value of L is there, that is L equal to 0. Means for first shell, there is only one subshell in it. For n equal to 2, there are two values of L possible, that is 0 and 1. Means for second shell, there are two subshells are there, and that is they are 2s and 2p. And in case of third shell, for n equal to 3, you have three values of L. It means in case of third shell, you have three subshells. Okay, and L equal to 0, 1, 2 is there. Okay, and those three shells are subshells are 3s, 3p, 3d. Okay, so it means now you have to fill the electrons more specifically in case of quantum model of atom. Okay, because now you come to know that there are shells, and shells further have subshells, and subshells further have orbitals, and in these orbitals you have to place your electrons which are present in the atom. For example, जो बोहर के केस में हम पढ़ते थे, जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इन केस ऑफ बोहर, K2L8M1, क्योंकि सोडियम में क्या होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, और उनकी फिलिंग कैसी होती है, K शेल में 2, L में 8, M में 1. ओके, बट इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक, क्योंकि अब हमें पता लग चुका है कि शेल्स के अंदर सब शेल्स भी होते हैं और सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स भी होते हैं. ओके, तो आपने ये बताना है कि हाउ सब शेल्स आर फिल्ड. ओके, हाउ सब शेल्स और उनके अंदर जो ऑर्बिटल्स हाउ दे आर फिल्ड ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम. ओके, and for the electronic configuration for filling the atomic orbitals, we have three principles that should be followed during electronic configuration of an atom. Okay, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्फ़िगर करना, उनको पोजीशन बताने की, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा. ओके, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस सब शेल के इस ऑर्बिटल में होगा, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरिंग दी इलेक्ट्रॉन्स. ओके, और यू कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. For electronic configuration, you have to fill atomic orbitals, and filling of atomic orbitals, during the filling of atomic orbitals, you have to follow these three principles. Okay, Aufbau principle, Pauli exclusion principle, Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, and now we are going to discuss these principles one by one. Okay, because for filling of electrons, these three principles should be obeyed during filling. First, Aufbau principle. Aufbau means building up. Aufbau का मतलब क्या होता है, building up. Okay. In ground state of atom, the subshells are filled in order of their increasing order of energy. Okay, means जो low energy वाला orbit होगा that should be filled first, और जो high energy वाला orbit होगा that will be filled last. Okay, clear? मीन्स जिसकी एनर्जी लो उसकी फिलिंग पहले, जिसकी एनर्जी हाई उसकी फिलिंग बाद में, ऐसे ही आपने फिलिंग करनी है. एंड हाउ विल यू फाइंड द एनर्जी ऑफ अ सबशेल, किसी सबशेल की एनर्जी कैसे फाइंड आउट करोगे, बाय एन प्लस एल रूल. ओके, एन प्लस एल रूल क्या कहता है, दोज सबशेल्स विच आर हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ एन प्लस एल will have lower energy, means they will be filled first. However, if two subshells, अगर ऐसा हो जाए कि टू सबशेल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल, किन्हीं दो सबशेल के लिए सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल आ जाए, देन एट दैट टाइम द ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ एन विल हैव लोअर एनर्जी. जब टाई हो जाए एन प्लस एल वैल्यू में, एट दैट टाइम यू हैव टू लुक फॉर द एन. द ऑर्बिटल विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ एन विल हैव लोअर एनर्जी. अब ये एन प्लस एल में एल क्या, एन क्या है, शेल नंबर, किस शेल नंबर की बात कर रहे हो, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब शेल नंबर. क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए ना हमें, एन और एल. एल का मतलब पड़ता है, एन मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मीन्स सब्सिडरी क्वांटम नंबर. फॉर एग्जाम्पल, फॉर 3p, what is value of n, n is 3.
एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी, पी के लिए एल की वैल्यू फिक्स होती है कितनी, पी के लिए एल इक्वल टू 1 होता है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल फॉर 3p, दैट इज 3 प्लस 1 4. एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ n plus l for 2p, that is equal to 2 plus 1, that is equal to 3. What is the n plus l value for 2p, that is 3, and n plus l value for 3p, that is equal to 4. It means 2p will be filled first as comparison to 3p. Okay, now one more example. What is the n plus l value for 2p and 3s? For 2p this is 2 plus 1, क्योंकि p के लिए l इक्वल टू 1 होगा, n इक्वल टू 2 गिवन है, ये आगे दिया हुआ है. 3. व्हाट इज n प्लस एल वैल्यू फॉर 3s, n इक्वल टू 3s के लिए l इक्वल टू 0 होता है फॉर s. ओके, तो 3 प्लस 0 3, n प्लस l वैल्यू 3 फॉर 3s, एंड 2p के लिए भी 3 है. अब टाई है ना n प्लस एल वैल्यू में. नाउ दिस टाइम यू हैव टू लुक फॉर लोअर वैल्यू ऑफ n out of this and this, which has lower value of n, 2p. It means 2p will have lower energy as comparison to 3s. Means 2p will be filled first, then 3s will be filled. Okay, so this is how you find the energy order. Okay, for finding energy n plus l. एक तो वो जो बोहर ने फॉर्मूला दिया था एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फाइंड आउट करने के लिए, एक तो वो फॉर्मूला है, वो नहीं लगाने बैठ जाना आपने, बस n प्लस एल वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आप उसकी एनर्जी की वैल्यू देख लोगे कि किस सबशेल की एनर्जी लो है, किस सबशेल की एनर्जी हाई है. ओके, और सबशेल फिलिंग का ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले 1s फिल होता है, उसके बाद 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, उसके बाद 3p, उसके बाद 4s, उसके बाद नो ये ऑर्डर गलत हो गया, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p देन 4s, नहीं ठीक था, देन 4s, देन 4s के बाद 3d, देन 4p, बिकॉज 4p विल हैव हायर एनर्जी एज कंपेरिजन टू 3d. कैसे पता लगा, इसके लिए n प्लस एल वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 5. 4p के लिए कितनी है, 4 प्लस 1 5. बोथ हैव n प्लस एल वैल्यू 5, बट दिस हैज़ हायर वैल्यू ऑफ n, इट मीन्स 4p की एनर्जी हायर एज कंपेरिजन टू 3d. ठीक है, बट ये ऑर्डर आपको कैसे याद रहेगा, उसके लिए आप ने ये एक डायग्राम सा दिया आपको. ठीक है, n इक्वल टू 1 ये दिखा रहा है कि फर्स्ट शेल में कितने सब शेल होते हैं, एक ही होता है 1s. सेकंड में 2 सब शेल होते हैं, क्योंकि इसके लिए n की l की 2 वैल्यू होती हैं 0 और 1, मतलब सेकंड सब शेल में 2 होते हैं 2s और 2p. थर्ड में ये 3 3s 3p 3d. फोर्थ में ये 4 4s 4p 4d 4f. फिफ्थ शेल में ये 4 सब शेल होते हैं 5s 5p 5d 5f 5g भी होता है, सॉरी 5 होते हैं, क्योंकि n इक्वल टू 5 के लिए l की कितनी वैल्यू आएंगी, 0 2 5 माइनस 1 0 2 4 0 1 2 3 4 5 वैल्यू आएंगी ना. इट मीन्स जितनी l की वैल्यू होते हैं उतने ही सब शेल होते हैं किसी भी शेल में. ठीक है, n इक्वल टू 6 के लिए 6 होंगे, बट कभी 5g और ये वाले भरने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 118 एलिमेंट्स हैं. ओके 118 एलिमेंट्स में मतलब जो हाईएस्ट वाला एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर हाईएस्ट है मींस 118, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने होते हैं, 118 इलेक्ट्रॉन. वो इन्हीं सब शेल में हो जाते हैं फिल. 5g और उससे हायर वाले ऑर्बिटल भरने की कभी नौबत आई ही नहीं है. ठीक है, एंड फॉर अब देखते हैं कौन पहले फिल होगा कौन बाद में. ठीक है, ये जो एरो पे ये 1s है इसके लिए n प्लस एल वैल्यू क्या है 1. ये एरो पे जो 2s सब शेल है इसके लिए n प्लस एल वैल्यू क्या है 2. इस एरो पे 2 ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, 2p और 3s. इन दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू कौन सी कितनी है 3, बट 2p के लिए n छोटा है, 3s के लिए n बड़ा है. सो दैट्स वाई 2p विल बी फिल्ड फर्स्ट देन 3s, उसके बाद 3p 4s. इन दोनों के लिए n प्लस एल वैल्यू कितनी है 4. एक एरो पे जो आ रहे हैं सब शेल्स उन सभी के लिए n प्लस एल वैल्यू फिक्स है, वो गिवन है जो एरो के पीछे लिखी हुई है ये वाली. इस एरो पे ये जो 3 सब शेल आ रहे हैं इन तीनों में के लिए n प्लस एल वैल्यू कितनी है 5. तो एनर्जी ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, n के अकॉर्डिंग. जिसका n सबसे छोटा उसको सबसे पहले फिल, 4s के बाद उसको 3d को फिल करना है, 3d के बाद 4p को फिल करना है, 4p के बाद 5s को फिल करना है, 5s के बाद फिर 4d को फिल करना है, फिर 5p को, फिर 6s को. ये आपको बनाना आना चाहिए. ठीक है, बनाओगे कैसे, इसके लिए एक बार ट्राई मार लेते हैं. ठीक है, वेट, ये है जैसे n इक्वल टू 1 के लिए आपके पास सिर्फ क्या होता है 1s.
n इक्वल टू 2 के लिए 2s और 2p, ये दो ऑर्बिटल होते हैं। n इक्वल टू 3 के लिए 3s 3p 3d, n इक्वल टू 4 के लिए 4s 4p 4d 4f, n इक्वल टू 5 के लिए 5s 5p 5d 5f 5g भी होता है, बट उसको तो भरने की कभी नौबत आई नहीं। सिमिलरली n इक्वल टू 6 के लिए। अब ऐसे लाइंस खींचनी है आपने, ये लाइन ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ 6s लिख देते हैं एंड ऐसे, ओके। और ऑर्डर क्या होगा, 1s के बाद क्या फिल करना है, 2s, फिर इधर आ जाना फिल करने के लिए। फिर 2s के बाद क्या फिल होगा, 2p और 3s। फिर 3s के बाद क्या फिल होगा, 3p एंड 4s। उसके बाद 4s के बाद क्या फिल होगा, 3d एंड 4p 3d। उसके बाद 4p, उसके बाद 5s। ऐसे ड्रॉ कर सकते हो आप, ये जो अफबा प्रिंसिपल के लिए डायग्राम सा दिया हुआ है आपको, ये वाला, ओके, गॉट इट। सो और वैसे एक एरो पे जो ऑर्बिटल आ रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं, एन प्लस एल वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल, द सेकंड प्रिंसिपल विच यू हैव टू ओबे ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में, एक जो बॉक्स सा बना रहे हैं इसमें 2 ऑर्बिटल मैक्सिमम आ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 2 ऑर्बिटल आ जाते हैं, ठीक है। एंड दीज हैव ऑपोजिट स्पिन, और वो भी कैसे आएंगे, ऑपोजिट स्पिन से। मतलब जैसे आपको पता है 2p छोड़ो, p के लिए एन की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या होती है 1, इसके लिए एम की कितनी वैल्यू आती है, 3 आती थी ना, -L2 + L करो, कितनी आती हैं 3, कौन कौन सी, -1 0 1, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हालांकि उन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, ठीक है, क्लियर। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ये किसने बोला, पॉली ने। तो इट मीन्स p सब शेल में टोटल 3 ऑर्बिटल हैं, तो p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिजाइड इनसाइड दी p सब शेल, ओके, क्लियर। तो पॉली की स्टेटमेंट एक बार दोबारा पढ़ते हैं, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज मस्ट हैव ऑपोजिट स्पिन। मतलब ऐसे होगा, ऑर्बिटल उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है जो ऑर्बिटल के अंदर आ रहा है, या आप ऐसे भी दिखा सकते हो, एक स्पिन डाउन एक स्पिन अप, ठीक है। मतलब तो वही हो गया, क्लियर। मतलब ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे उनकी दोनों की स्पिन जो है वो ऑपोजिट होगी। ये पैरेलल स्पिन वाले एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे कि दोनों पैरेलल, या तो दोनों क्लॉकवाइज हैं दोनों एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये ऐसे ही नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ मैंने एंटी क्लॉकवाइज वाले बनाने थे, ये गलती से बन गया हुआ, यहाँ ऐसे बनना है, ठीक है। दोनों क्लॉकवाइज और दोनों एंटी क्लॉकवाइज एक ही ऑर्बिटल में नहीं होंगे, एक ऑर्बिटल में एक स्पिन अप होगा तो दूसरा स्पिन डाउन होगा, दैट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। बट पॉली की एक और डेफिनेशन, पॉली की इस बात से एक और मतलब निकलता है, और वो अनदर डेफिनेशन क्या निकलती है, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। किसी एटम में ऐसे कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे विच विल हैव सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर कितने होते हैं, 4 ना, n l m और ms। दीज आर दी 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो 4 क्वांटम नंबर हैं, एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम के अंदर वो, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम के अंदर हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन में से कोई भी आपको 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम हो, ओके। नो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम विल हैव सेम सेट ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स, ओके। अब इसका मतलब समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये है 1s2 2s2 2p6 3s2, ओके, क्लियर। अब जो 3s, अभी आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो अभी करनी नहीं आती होगी, ये हम बाद में करेंगे। वैसे ये 1s 2s 2p 3s ये कैसे भरा है, ये अहबो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भरा है ये, ओके। अहबो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं ना, हमारे पास अहबो प्रिंसिपल होता है, ठीक है। यही बोला ना हमने अभी पढ़ा है कि सब शेल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो पहले 1s फिल हुआ, फिर 2s फिल हुआ, फिर 2p फिल हुआ, फिर 3s फिल हुआ। मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कैसे फिल करे, 1s पहले फिल होना था, 2s बाद में, फिर 2p फिल होना था, फिर 3s फिल होना था, फिर 3p फिल होना था। इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने थे, 12। 1s की मैक्सिमम कैपेसिटी, 1s में एक ही ऑर्बिटल होता है, 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होता है, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे वो 3s हो,
3p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि 2p के p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, चाहे वो 2p हो चाहे वो 3p हो। क्लियर। एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2, तो 2 इसमें भरे, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इनसाइड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के 12 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते हैं। तो इसलिए मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी, 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे बोलेंगे इसको कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। क्लियर। अब जो 3s में इलेक्ट्रॉन है दो, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 3s ऑर्बिटल है, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे पड़े हैं, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को स्टडी करें, इसके लिए कौन कौन से क्वांटम नंबर हैं, इसके लिए क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या आ रही है, 3s में है तो n इक्वल टू 3 है, ये वाला। l इक्वल टू 0 होता है s के लिए, s के लिए m की वैल्यू 0 होती है, s में a की m की वैल्यू आती है 0। और इसके लिए स्पिन अप है तो इसलिए इसके लिए ms वैल्यू हमने बोल दी +½ अब ये दूसरे की स्टडी अगर करें, इसके लिए n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 0 है, m इक्वल टू 0 है, ms इक्वल टू -1 है। तो मतलब जो एक ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनमें भी मैक्स टू मैक्स 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं दोनों के। चौथा क्वांटम नंबर डिफरेंट ही होगा, क्योंकि एक स्पिन अप है एक स्पिन डाउन है, तो स्पिन क्वांटम नंबर डिफरेंट ही होगा। ठीक है। मतलब कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन आपको किसी एक एटम में ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके सेट ऑफ ऑल द क्वांटम नंबर्स सेम हो। ओके। जैसे अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं जी सर ऐसे करो, जो मैग्नीशियम में 2p के 6 हैं इनको दिखाओ, इनके बारे में बात करो। 2p में मतलब 2p में यू नो देर आर 3 ऑर्बिटल्स। ठीक है। कौन कौन से, पी एक्स पी वाई पी जेड। पी जेड के लिए m इक्वल टू 0 है, पी वाई के लिए m इक्वल टू -1 मान लेते हैं, पी एक्स के लिए m इक्वल टू +1 है। m की वैल्यू 3 आती है ना, l इक्वल टू 1 जो कि p के लिए होता है, उसके लिए m की कौन कौन सी 3 वैल्यू होती हैं, -1 0 1। ठीक है। क्लियर। तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल हैं, ऐसे, दीज आर दी 2p6 ऐसे फिल्ड है। ओके। अब जो ये वाला इलेक्ट्रॉन हो इसके लिए n की वैल्यू क्या आएगी, इसके लिए n की वैल्यू 2p है ना, तो इनके लिए n की वैल्यू क्या क्या है, 2 वेट यहाँ पे ना गलती से लिख हो गया ये। ठीक। ये n की वैल्यू इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए, इस सब मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 ही है। l की वैल्यू इन दोनों के लिए जो इसमें आ रहे हैं -1 है ना, 3px की वैल्यू जो है, जो 2px है, ये 3p नहीं, ये 2p है, यहाँ भी गलती से 3 लिखो गया। ठीक है। ये जो 2px है इसमें 2px के लिए l की वैल्यू क्या होती है, -1। तो हमने क्या ली, सॉरी, p के लिए l की वैल्यू तो 1 ही होती है, l की वैल्यू क्या दिखाती है, सब शेल, जो p के लिए l की वैल्यू एक ही होती है 1। m की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होगी, 2px के लिए कितनी होगी, -1। तो इसके लिए भी, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी -1 है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी -1 है। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए अब 2py की वैल्यू क्या होती है, m की +1। इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी +1 है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी +1 है। 2pz में जो इलेक्ट्रॉन होगा, 2pz के लिए हमने जो m की वैल्यू है वो क्या है, ये जो आपके पास यहाँ लिखा है ना, ये थोड़ी ना गलती हो रखी है, यहाँ पे m की वैल्यूज़ लिखी हुई है। ओके। जो 2pz में 2pz का 0 होता है, m की वैल्यू 0 होती है, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए l की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है, 0 0। ठीक है। और इसके लिए स्पिन क्या होगी, +½ इसके लिए -½ +½ -½ +½ -½ अब आप इन सभी एल वैल्यू, ये जो एल एन एल एम और एम एस की वैल्यू आई वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए आई। सिमिलरली ये वाली जो वैल्यूज़ हैं वो इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाली इसके लिए। ठीक है। अब आप कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसको और इसको स्टडी करते हैं, मान लो इनके और इनकी सिमिलैरिटी देखते हैं, एन सेम है इन दोनों के लिए, ठीक है, एल भी सेम है, ठीक है, एम इसका -1 है, इसका 0 है, नहीं सेम, एम एस इसका +½ है, इसका -½ नहीं सेम। ठीक है। अब चलो इसका और इसका कंपैरिजन करते हैं, N2 है, N2 है, L1 है, L इसका भी 1 है, M -1 है, M इसका +1 है, M डिफरेंट हो गया, ये सेम नहीं है, MS -½ है, इसका भी -½ है। मतलब मैक्स टू मैक्स किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन के जो किसी एक एटम में प्रेजेंट है, मैक्स टू मैक्स उनके 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो सेम हो सकती है, चौथे क्वांटम नंबर की, चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं आती किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन की इनसाइड ऑफ एन एटम। ओके। क्लियर। दिस इज द Pauli exclusion principle. Okay. And the last principle is
हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहाँ काम आएगा? पी डी और एफ ऑर्बिट सब शेल्स के केस में, पी डी और एफ सब शेल्स के, नॉट ऑर्बिटल, सब शेल्स। ओके, कैसे? इन केस ऑफ पी यू नो दैट पी हैज़ 3 ऑर्बिटल्स। जो पी सब शेल होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब शेल में, डी सब शेल हैज़, डी में एल की वैल्यू क्या होती है? 2, -2, -1, 0, 1, 2। डी सब शेल हैज़ 5 ऑर्बिटल्स। ओके, तो इनमें क्या होता है? ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयरिंग in P, D and F subshells cannot occur until each orbital of a given subshell, जिस सबशेल को आप बात जब जिस सबशेल की आप बात कर रहे हो, कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच विद पैरेलल स्पिन। ठीक है, मतलब P सबशेल में जो 3 ऑर्बिटल हैं उनमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते दौरान तब तक पेयरिंग नहीं हो जाएगी, पेयरिंग शुरू नहीं होगी जब तक तीनों सब शेल्स में, तो तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाता। ठीक है, नहीं समझ आई अभी भी? इसको एग्जांपल से क्लियर करते हैं। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है, क्योंकि नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 2s2 2p3। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। 1s2, 1s में 2 आने हैं, एक ही ऑर्बिटल है। 2s2, 2s भी एक ही ऑर्बिटल है। 2p में 3 ऑर्बिटल्स आर देयर, तो उनकी फिलिंग कैसे हो सकती है? एक एक इलेक्ट्रॉन भरो विद पैरेलल स्पिन, जैसे ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। या तो ऐसे हो सकती है, या तो ये, या तो ये। ठीक है, ये कुछ केसेस हैं, क्लियर, जो हो सकते हैं। बट 2p में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है। ठीक है, क्लियर? बट इनमें से कौन कौन सी ठीक है, कौन कौन सी गलत है? इसमें क्या है, इसमें हर ऑर्बिटल को, 3 ऑर्बिटल, तीनों को पहले सिंगली ऑक्यूपाइड करवाना है विद पैरेलल स्पिन। ठीक है, पैरेलल स्पिन मतलब तीनों की एक जैसी स्पिन होनी चाहिए। इसमें भी जो तीनों हैं, तीनों को 3 इलेक्ट्रॉन जो फिल किए हैं इन 2p में 3 ऑर्बिटल, तीनों ऑर्बिटलों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाला विद पैरेलल स्पिन। पैरेलल स्पिन मतलब या तो तीनों स्पिन डाउन हो या तीनों स्पिन अप हो। ठीक है, इसमें क्या है, 2 स्पिन अप है, 1 स्पिन डाउन है। इसमें क्या है, इसमें पेयरिंग शुरू में पहले करवा दिया आपने, ये खाली रह गया। ठीक है, ये वाला केस और ये वाला केस वैलिड नहीं है, बस ये दोनों केस वैलिड हैं। मतलब नाइट्रोजन के लिए अगर ऐसे लिख दोगे वो भी ठीक है, ये भी लिख दो, ऐसे लिख दोगे ये भी ठीक है, बट ये दोनों केस गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि यही तो हंस रूल है कि पेयरिंग आपने शुरू नहीं करनी, तब तक शुरू नहीं करनी जब तक किसी सबशेल के हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाता विद पैरेलल स्पिन। तो ये पेयरिंग शुरू कर दी आपने। ठीक है, ये पहले पेयरिंग शुरू कर दी, ये खाली रह गया। ठीक है, तब तक पेयरिंग नहीं शुरू करनी। और आप बोलोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है फिर, इसमें तो पेयरिंग नहीं शुरू करी, तीनों ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसमें ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने ये भी बोला साथ में विद पैरेलल स्पिन, मतलब तीनों इलेक्ट्रॉन्स या तो तीनों स्पिन अप होंगे जो 3 ऑर्बिटल में ऐड होंगे, या तीनों स्पिन डाउन होंगे जैसे इसमें और इसमें। और इसको ये क्यों बोलते हैं मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? क्योंकि देखो जब तीनों स्पिन अप होंगे, अब इनके लिए अगर इसकी स्पिन क्या है, +12, इसकी +12, इसकी +12, टोटल स्पिन क्या बनेगी अगर तीनों का सम कर दें? +3/2। अगर ये वाला देखें, -12, -12, -12, सम कर दें -3/2। मतलब साइन तो आप ना ही देखो, साइन तो ये बता रहा है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो मैग्नीट्यूड 3/2 3/2 आ रहा है। बट अगर हम ऐसे फिल ना करके ऐसा और ये वाला केस माने, तो इसके लिए मल्टीप्लिसिटी क्या सम क्या बनेगा? +12, -12, +12, -12 और +12 कट जाएगा, इसके लिए ओवरऑल क्या बनेगा? +12। अगर ऐसे करें तो +12, -12, +12, ओवरऑल स्पिन क्या बन रही है सम करके? +12। ठीक है, मल्टीप्लिसिटी शुड बी मैक्सिमम, और वो तभी होगी व्हेन यू फिल ईच ऑर्बिटल विद 1 इलेक्ट्रॉन हैविंग पैरेलल स्पिन, तभी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आएगी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या है, साइन नहीं देखना आप लोगों ने कि ये वैल्यू मैक्सिमम आए, और वो इन्हीं 2 केसेस में आ रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हंस रूल यही दो अरेंजमेंट, यही 2 केसेस जो हैं वो करेक्ट हैं, ये वाले केसेस इनकरेक्ट हैं।
ओके, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ए मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, और मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कब आती है? जब आपके पास द सबशेल फील्ड is in a such way that all the orbitals in that particular subshell is carrying one electron each and with parallel spin. Either all the, for example in case of nitrogen, either all the 3 electrons are spinning upward और स्पिनिंग डाउनवर्ड। क्लियर? अब जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या है, 1s2 2s2 2p6। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले 1s फिल होना है, फिर 2s, फिर 2p। ठीक है, अब हमें पता है 8 फिल करने हैं तो 1s की मैक्सिमम कैपेसिटी ही 2 इलेक्ट्रॉन की है, क्योंकि इसमें एक ही शेल होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसकी भी दो दो 4 फिल हो गए, बाकी 4 जो बचे वो 2p में फिल हुए। अब इसके केस में 2p में 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपने। अब वो उसके लिए तो आपको पेयरिंग करवानी ही पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाइड करवाए, 4th इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पे आप पेयर अप करवा सकते हो, या यहाँ पे, या तो यहाँ पे, मतलब यहाँ करवा सकते हो, या इसमें करवा सकते हो, या इसमें करवा सकते हो। तो इसके केस में तो और कोई केस बन भी नहीं रहा, नो केस इज पॉसिबल। इसमें तो पेयरिंग होनी ही होनी है, क्योंकि 2p में 4 इलेक्ट्रॉन तभी जाएंगे जब पेयर होंगे। ठीक है, तीनों में से एक ऑर्बिटल में पेयरिंग करवानी पड़ेगी, चाहे ये 2px में करवा दो, चाहे 2py में करवा दो, चाहे 2pz में करवा दो, तीनों इक्वल एनर्जी वाले हैं। ठीक है, तो इट मीन्स इन ऑक्सीजन के लिए ये वाला केस भी ठीक है, ये वाला केस भी ठीक है, ये वाला केस भी ठीक है, ये वाला भी केस ठीक है, ये वाला केस ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि 2p4 करते टाइम, अब ये वाले केस में क्या प्रॉब्लम है, 2p4 करते टाइम 2p4 कैसे हुए होंगे, 2p में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 4th इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिए। मतलब पहले जो 3 इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो पैरेलल स्पिन भरते हैं। इन्होंने क्या किया, वो पहला इलेक्ट्रॉन पैरेलल अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, उसके बाद यहाँ पे पेयरिंग, ये डाउनवर्ड नहीं, ये भी अपवर्ड ही चाहिए था। ठीक है, और ऐसा करने से हुआ क्या, चाहे मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग देख लो, ऐसा करने से हुआ क्या, मल्टीप्लिसिटी कितनी बनी, प्लस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, ओवरऑल मल्टीप्लिसिटी बन गई 0। और इसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कितनी बन सकती है, इस केस में देखोगे तो भी 1 बन रही है, इस केस में देखोगे तो भी 1 बन रही है, इस केस में भी 1 बन रही है, इस केस में भी 1 बन रही है, क्योंकि उसकी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो आपने फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन दी सबशेल ऐसे करनी है कि उसकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम रहे, इसलिए इसको बोलते हैं हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके, so these are the 3 rules which you have to satisfy during filling of the orbitals inside an atom in the quantum mechanical model. Okay, clear? ओके, मेजरली आपका जो यूज़ होता है रूल, वो ये अफवर रूल यूज़ होता है कि कौन सा सबशेल पहले फिल करना है और कौन सा सबशेल बाद में। ठीक है, और कैपेसिटीज़ किसकी कितनी कितनी है, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 1s, इसके में एक ऑर्बिटल ही होता है, मतलब s, चाहे वो 1s हो, चाहे वो 2s हो, चाहे वो 3s हो, चाहे वो 4s हो, s में एक ही ऑर्बिटल होता है। ओके, जो p है, चाहे वो 2p हो, चाहे वो 3p हो, चाहे वो 4p हो, चाहे वो 5p हो, कोई वाला p भी हो, उसके लिए उसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं p में। d में चाहे वो 3d हो, चाहे वो 4d हो, चाहे वो 5d हो, वेट 5d, उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। ऐसे ही f में चाहे कोई भी हो, 4f हो, f की स्टार्टिंग 4th शेल से होती है। ठीक है, d की स्टार्टिंग 3rd शेल से होती है, 2d नहीं कभी होता। वैसे ही p की स्टार्टिंग 2nd शेल से होती है, 1p नहीं आपको कभी दिखेगा। 4f हो चाहे वो 5f हो, उसके लिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर, उसमें 7 ऑर्बिटल ही देखने को मिलेंगे। तो इन सभी की, अब आप अगर आपको कोई पूछे p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, p कितने इलेक्ट्रॉन, s की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, s कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम ले सकता है, 2, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 ही जाते हैं, एक स्पिन अप एक स्पिन डाउन, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही एडजस्ट कर सकते हैं। p में 3 ऑर्बिटल हैं तो इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 6। d में 5 ऑर्बिटल हैं, एक के 2, तो 5 में कितने मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स कितने फिल कर सकते हैं d में, 10 इलेक्ट्रॉन। और f सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 7 ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल में 2, तो 7 इंटू 2 14 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन दी f सब शेल। ओके, क्लियर? तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है
जैसे अगर आपको कोई पूछ ले एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 13, क्योंकि उसका अटोमिक नंबर 13 होता है तो उसमें 13 प्रोटॉन होते हैं, 13 प्रोटॉन होंगे, इट मीन्स 13 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। एंड 13 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने शुरू करने हैं। पहले कौन फिल होगा 1s, उसके बाद कौन फिल होगा 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s, 2p उसके बाद 3s, उसके बाद 3p फिल होता है, उसके बाद 4s फिल होता है, उसके बाद 3d फिल होता है। ठीक है, इसकी 13 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब भरना शुरू कर दो 1s2 मैक्सिमम कैपेसिटी तक पहुंचा के, उसके बाद तो भर नहीं सकते। 2s में फिर 4 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। 2p में p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। 3s की मैक्सिमम कैपेसिटी 12 इलेक्ट्रॉन भर दिए। 2p नेक्स्ट कौन है 3p की मैक्सिमम कैपेसिटी 6, बट अब एल्यूमिनियम में होते ही 13 इलेक्ट्रॉन है, 13 में से 12 तो भर दिया आपने। ओके, बचा कितना एक इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी गोज इनटू दी 3p। ओके, तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ओके, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बाय यूजिंग ऑफ प्रिंसिपल। ओके, क्लियर। और अगर और डिटेल में जाना है, ठीक है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसने बताया था कि 2 होते हैं, वो बताया था पॉली ने। ठीक है, और हंस ने क्या बताया कि पेयरिंग तब तक शुरू नहीं करनी जब तक सबशेल में each orbital of a subshell is containing 1 electron each with parallel spin। ये तीनों रूल ध्यान में रख के आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, so students, till then enjoy your time and thanks.